बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अगेन उमर कि आपने ये टाइम निकाला हमारे लिए और हमें ज्वाइन किया। आज के सेशन में हमारे माशाल्लाह जो कुछ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एंड सम फैकल्टी मेंबर्स आर जॉइनिंग अस। टिपिकली हम ये सेशन वेबिनार सेटिंग में करते हैं, विच मीन्स के आपके बेसिकली मैं आपको रन डाउन कर देता हूँ इस सेशन का। typical जो हमारा प्रोग्राम होता है, I will be introducing Omar and the wonderful work that he's been doing. Omar will speak about himself and the company, and then उसके बाद हम live Q&A भी लेंगे, which you are welcome as the audience members to put in। जो हमारा Facebook live वाला session है, हमारी टीम फिर मुझे forward करेगी आपके सवालात, and we will pose them to Omar, and then inshallah in about 40 minutes at most we will allow Omar to have spent his valuable time with us. So without further ado, let's launch into the session. Omar Farooq साहब CEO हैं of Interwood Mobile Private Limited. माशाल्लाह, I think most of us will have seen जो इनके माशाल्लाह billboards हैं, retail outlets हैं। जो हमें चीज़ नहीं नजर आती, I think is the jewel in the crown जो कि उमर देखते हैं, in particular of course, which is the production side, and which is I think what he'll be talking about mostly today, क्योंकि जो challenges पाकिस्तान में present होते हैं with running a production facility. Retail has its own challenges, but I think production can be a very, very challenging time. Omar Saab has been working in the consumer goods industry for many, many years. He has a Bachelor's of Science degree in Furniture Design and Manufacturing from Brunel University in the UK. And mashallah has been leading Interwood and has led Interwood to great new heights, multi-fold increase in revenue, both on the production side, of course, and on the retail side as well. He is a distinguished member of the Young Presidents Organization, जिसमें वो chairperson भी रह चुके हैं a few years ago, and also he is an independent director on the board of SME Bank Limited. So quite a varied experience. So with that, Umar, I will hand it to you to tell us a little bit जो माशाल्लाह आपका prior experience है as an individual, and then जो आपको challenges और opportunities नजर आई जिन पे आपने capture किया और वो जो अब नजर आ रही हैं और इंशाल्लाह आप capture करना चाहेंगे. So over to you. बहुत Salim was amazed to see the work you're doing at Nur University. बहुत मजा आया देख के, and great to see something very nice happening in Pakistan. We need universities like this, so I wish you best of luck with that. जो आपने इतना मुश्किल question मेरे से पूछ लिया है, I'll try to answer it in a summarized form. 1991 I left for UK, and वहाँ से मैंने degree की furniture production की, which was 95 I completed the degree. When I went to UK, I had no prior experience of furniture making or anything. तो हुआ क्या कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया to understand furniture, especially drawings वहाँ जाके. So I had to work extra hard there to understand drawings. And of course मुझे थोड़ी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हुई वहाँ जाके, क्योंकि उनका ज़रा डायलेक्ट भी फ़र्क होता है और थोड़ी सी चीज़ें फ़र्क होती हैं. So to cut the story short, I was not very good in practical as well, so I had to do practical as well. So वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा struggle रहा. पहला साल तो मुझे समझ ही नहीं आई drawings, so I had to work really hard to understand the drawings. And in second year also passed by. I struggled with the drawings and then also the practical side, but I managed to walk through that second year, and I started to get hold of things कि मुझे समझ आनी शुरू हो गई basics of furniture. And third year was a placement year, and वो मैं north में चला गया, and वहाँ जो interesting चीज़ हुई कि I was not getting a placement. That was my course was a 4-year placement sandwich course. So एक साल मुझे पूरा industry में गुजारना था. So I was not a Gora, so I didn't get मेरी last placement थी. But I thought I got the best placement, क्योंकि वो furniture making थी traditional, और उसमें
बहुत सारा जो हमारा कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है वो मैंने उधर सीखा, और फिर मैंने बेसिक्स प्रोटोटाइपिंग की, और वहाँ पे मैंने फिर इवन प्रोग्रामिंग भी की। सो मेरा टॉप से लेवल से लेके नीचे लेवल तक इंटरेक्शन हुआ, और जो चैलेंज मुझे आया, और जो हम पाकिस्तानी बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम समझते हैं हमें सब कुछ समझ आ गया। वो मुझे मेरा बॉस था, वो बड़ा वियर्ड एक्सेंट था उसका, लीड्स का नॉर्दर्न एक्सेंट। उसने बोला, मैंने यूं सारे ला दिया और पता लगा कि जी समझ कुछ नहीं आई, कर गलत दिया। 2-3 दफा मैंने ये किया, और उसने बड़ा गुस्सा हुआ जाके अपने बॉस को, ये क्या बंदा ले आए हो। so, and I learned it that way कि यार ये ऐसे नहीं सारे लाना जब तक समझ ना आए। So eventually वो फिर मेरी 2 महीने मुझे लगे उसको समझने में, और फिर मुझे ड्राइंग्स, मैंने प्रोटोटाइप बनाई, ड्राइंग्स बना के पूरी एक प्रोटोटाइप किया, which is quite complex in its own way. तो चौथे साल में, and then I passed through, I used to play league cricket there as well. So वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, because exercise for me was a very important part of my life. चौथे साल में मैं वापस चला गया, and that was you had to do a project in which you had to set up a factory and run your whole production unit. And that I did. I was faced with a lot of challenges at the end. सारे गोरे में खिलाफ हो गए क्योंकि वो एक अवार्ड था उसके अगेंस्ट, so everybody gang that's against me, and I चिकन पॉक्स हो गया मुझे, और मेरा कंप्यूटर में भी वायरस आ गया। एंड यू कांट बिलीव इट, वो मैंने पता नहीं कैसे किया और किस तरह किया। ऑल द क्लास वाज अगेंस्ट मी बिकॉज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करता था। सो आई गॉट, मेरा ख्याल है मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, बट आई थिंक दे मैनिपुलेटेड। सो ये बाहर भी होता है मैनिपुलेशन इन द रिजल्ट्स, बिकॉज वो गलती से अपना रिजल्ट छोड़ गए थे उधर एक्सटर्नल, तो हमने जाके कॉपी की, उसका नंबर्स नहीं आते, वो बीएससी सिंपल थी डिग्री। सो एनीवे थर्ड किया, जिस ने मार्क किया एक्सटर्नल एग्जाम में, आज वो मुझसे जॉब मांगता है। सो यू नो थिंग्स हैव चेंज दैट वे। और चौथा साल आई पास थ्रू, आई गॉट द थर्ड पोजीशन, आई डिड अ चेयर इन प्रोडक्शन एंड देन आई डिजाइन्ड इट एज वेल। सो दैट वेंट वेल, एंड उसका मुझे फायदा ये हुआ कि when I came back into the my family business, I joined in 95. तो उस वक्त बहुत प्रिमिटिव और बेसिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे थे हम इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो फॉर एग्जांपल वी यूज्ड टू मेक अ डोर इन 15-30 डेज, और फिर उसको साइट पे जाके 30 डेज में पॉलिश करते थे। Now with the technological advancements we have done, we have managed to do 200 doors a day, and that's what the difference has come through. So उसमें एक बहुत बड़ा फेज है of transformation, culture का, systems का, you know, innovation का, technology का. It has been such a incredible journey and a painful journey, but you know, pain के बगैर gain नहीं आता. So here we are now in 2021. And I think in the last 3 years we have struggled as an organization because हमें ये challenges आए कि economy went down, and फिर हमें ये जो डॉलर की depreciation हुई, हमारा basic raw material बाहर से था, वो भी हमें काफ़ी challenge हो गया। अभी भी इसमें बहुत challenge है raw material pricing में, और ये construction industry में सबसे बड़ा इस वक्त I think problem material की escalation in prices है। So anyway, उसमें फिर हम ये चलते गए। हमने 2002 में we changed the management, उसमें फिर हमने उसको retail की तरफ अपना shift किया। We were mostly doing contract furniture. So 2002 में हमने ये decide किया कि contract में होता था कि 6 महीने काम किया, 3 महीने काम नहीं हुआ, तो वो सारा जो profit था convert हो जाता था losses में। So we said we want to make our own brand, and in 2002 we decided to convert this into a brand. So वहाँ से हमने retail outlet शुरू की। हमने एक छोटी सी शॉप ली थी कराची में, वहाँ my brother shifted। उसने फिर वहाँ से छोटे से बेसमेंट में 500 स्क्वायर फीट की शॉप से अब अल्हम्दुलिल्लाह it's a 50,000 square feet shop there in Karachi, two बल्कि lucky one on that।
अब now we have about 9 retail outlets जिसमें हम अपनी पूरी variety of home furniture, kitchen door wardrobe, office furniture की हमारी पूरी range है जो कि एक unique है in the world because इतनी product line under one roof कोई retail और produce नहीं कर पाता. So because of our market conditions were such that we had to create this flexibility because the demand was driven by unstructured. जो demand तो बहुत है इस वक्त लेकिन unstructured competition के पास बहुत है तो उसकी वजह से हमारी जो pricing है वो हमेशा उस तरह fairly जो buyer होता है उसको पता नहीं लगता. The carpenter tricks him into a situation और वो फिर उसको low cost दे के उसको add on करता है and then eventually ends up paying more money, which is very, you know, so unfortunately this is what is going on in the market. So home furniture and office furniture has seen a lot of growth in the last 3 years. We foresee that this is our potential and we will now build up our outlets all over Pakistan and in the world on, I think, in office and home. Because इसमें important चीज़ ये है कि इसमें unstructured competition आपको hit कम करता है. Kitchen door wardrobe की market में आपको carpenter hit करता है जो दिखाता तो ऐसे है कि जैसे वो Interwood बना देगा लेकिन eventually वो फिर जो बनाता है फिर वो जो customer होता है उसको eventually it's too late for him. And the sad part is he ends up paying more money. So and the quality part and the service part वो तो है ही नहीं. So ये सारी चीजें possible हुई हैं हमने जो a lot of investment in our technology, automation and systems में and हमने culture पे बहुत काम किया है और वो क्योंकि हमारे लोग नीचे से grow के ऊपर आए थे वो stuck हो गए थे तो हमने उनको एक different mindset में अब लेके गए. हमने काफी सारी human resource development में भी खर्चा किया है तो इसकी वजह से हमें काफी impacts नजर आ रहे हैं in the future. The market looks very good now, I think. And the opportunity is there. जब भी austerity होती है या बुरा वक्त होता है उसके अंदर opportunity हमेशा होती है, I think. So I think the things look good and we see a good future and you know we're going to expand in this. Inshallah. And so Umar, a few things I heard, of course, I think for our audience जो सबसे बड़ी चीज आपने अपने स्टूडेंट करियर में पॉइंट आउट की कि कोई शॉर्टकट नहीं है टू हार्ड वर्क एंड सो ऑब्वियसली यू पुट इन द हार्ड वर्क, यू took over the company and आपने उसमें बहुत changes लाई. I know there was an earlier generation as well जिसमें आपने बहुत quantum leap लेके आए, आप रिटेल में गए. More importantly, I think audience के लिए I think एक बहुत फख्र की बात है for Interwood के आप लोग MIT Technology Review में भी you were pitched as having done some significant automation work. And उसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए कि in obviously एक आपने cultural change आप अपनी production facility में लेके आए on the growth side. But also कि I think जो traditional हमारी पाकिस्तानी industry focus करती है on what for lack of better terms would be labor arbitrage, आपने low labor cost को नहीं, आपने कहा कि जी हमें automation probably which is a much more कह सकते हैं sustainable development, आपने उसके ऊपर focus किया. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि how was that experience and how did you manage the automation work when you brought in that different culture and the mindset कि जी you have to improve at a quantum step, not just incremental improvement. उसमें जो सबसे it started in 2000 I think 2 when we brought in the first CNC. It was a small CNC. वो मेरा तो ख्वाब ही था कि शायद मैं पाकिस्तान में जाके कभी CNC नहीं लाऊंगा. So CNC is a machine that does all you put the piece and it will do all the configuration, it will do the drilling, it will do the routing. It's a terminology that's used in woodworking. तो वो उसमें वो सारी जो part है उसको वो process कर देती है. So I never thought कि यार ये बस यही होगी अब इसके बाद तो कुछ नहीं है. So we kept on investing and now alhamdulillah we have about 10 CNCs I think 10 to 15 and these are big massive CNCs which you know have an output of thousands of pieces in a day. So उससे क्या है फिर क्योंकि मैं exhibitions में बहुत जाता था, मेरी सारी learning exhibitions हुई. 2 exhibitions से जो मैं 20 years से जा रहा हूँ 20 साल से was one in China and one in Germany. So I learned both
ways of doing business. So I learned the Chinese way as well as the Japanese. So क्योंकि मुझको ये मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी देनी थी, तो आई लर्न हाउ टू ऑटोमेट एंड गिव फ्लेक्सिबिलिटी इन माय प्रोडक्ट लाइन. वो एक करना यूनिक और आर्ट है. प्रॉब्ली दुनिया में ये शायद कोई नहीं कर पाया. इतनी वैरायटी को मैनेज करना कि एक किचन भी बन रहा है, वहाँ एक डोर भी बन रहा है, 100 दरवाजे भी बन रहे हैं और 100 किचन भी बन रहे हैं, 1000 पता नहीं ऑफिस फर्नीचर की आइटम्स बन रही हैं. सो इतनी उसको कंसिस्टेंसी के साथ लाना वाज ओनली पॉसिबल थ्रू ऑटोमेशन. और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट हो रही थी, जो मुझे नजर आ रहा था, कि स्किल डिप्लीट हो रहा था. जो फादर टू सन स्किल था वो बिल्कुल खत्म हो रहा था. और आई थॉट कि यार ये हम कहाँ, ऑल्दो वी ट्रेन आवर वर्कर्स, बट उस लेवल का स्किल तो अब है नहीं. सो व्हेन आई जॉइंड द कंपनी वी हैड 200 स्किल्ड कारपेंटर्स. अब मेरा ख्याल है मेरे पास 5 भी नहीं रह गए होंगे उस लेवल के स्किल्ड कारपेंटर्स. तो अगर मैं ऑटोमेशन ना लाता इन द सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, तो ये तो बिजनेस वायबल ही नहीं रहना था. फॉर एग्जाम्पल नीश होता, छोटी लेवल पे रह जाता. लेकिन अब क्योंकि हमने उसको अगर ग्लोबली एक्सपैंड करना, तो कोई चीज दुनिया में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के बगैर और इनोवेशन के नहीं चलती. इनोवेशन इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज अगर मैं एक स्टैंडर्ड लाइन ला के लगा देता, बड़े लोगों ने लगाई लाइन फर्नीचर प्रोडक्शन की, वो नहीं सक्सेसफुली लाइन लगाई जो फ्लेक्सिबल तरीके से आपकी मार्केट ड्राइव करती है. सो अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट मार्केट के मुताबिक नहीं बना हुआ ना, तो वो फेलियर है, स्पेशली इन फर्नीचर इंडस्ट्री. ये वो तो नहीं है दाल आपने बेचनी है और वो आपने आटा बेचना है. दिस इज नॉट दैट वे. सो इसमें आपकी वैरायटी, डिजाइन, यू हैव टू चेंज देम एवरी टाइम. सो जो हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिर हमने रोबोट्स लगाए पॉलिश के अंदर, जो जिसमें MIT पे भी आया. फिर हमने ऑटोमेटेड पॉलिश लाइंस लगाई और बहुत सारी ऑटोमेशन की प्रेस लाइंस लगाई एंड सो मच मोर. एंड वो आज एक यूनिक नॉलेज है हमारे पास, जो शायद बहुत कम लोगों के पास हो. सो टूलिंग से लेके, टूलिंग एक अलग ही चीज़ है. अगर मशीन इज एज गुड एज टूल, तो अगर आपका टूल शार्पन नहीं प्रॉपर हुआ, उसकी एक स्पेशल मशीन है और करोड़ों रुपए की मशीन है, तो आप वो प्रोडक्ट को खराब कर देगा. क्वालिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज. सो हर लेवल पे उसकी मशीन की मेंटेनेंस, उसकी सारी चीजें वो उसके साथ फिर आती हैं. देन यू हैव टू ट्रेन योर पीपल अकॉर्डिंगली. तो होता क्या है, स्किल शिफ्ट हो जाता है. आई थिंक द वर्क फोर्स तो शायद उतनी ही है हमारे पास, बट यस द क्वांटम हैज गॉन अप बाय 100 times maybe, and this is what technology does. So अगर आप वो और स्पेस हमें, अगर हम इस वक्त 6 लाख स्क्वायर फुट है और अगर हमें यही प्रोडक्शन नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड में करती, तो हमें शायद पता नहीं कितने लाखों स्क्वायर फुट में 10 times more space चाहिए होती. So, and you know, space is very expensive, and to make building of this size is, so it won't be viable to run it the conventional way, I think, and you can't scale up. So scaling up, going to global levels, you have to automate, you have to invest in your systems, I think. I hope I've answered your question. Thank you. नहीं, I think you certainly have. Which brings us अब जो हमारा दूसरा सवाल है, क्योंकि again आपने एक cultural transformation की बात की as the company shifted gears. तो उसके बारे में बताइए. माशाल्लाह we teach in our MBA program and BBA programs organizational behavior के बारे में करते हैं, leading people and groups के बारे में करते हैं. तो maybe you can tell our young generation थोड़ा सा कि आप जब ये वर्कफोर्स के साथ काम करते हैं, एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं. ऑब्वियसली अब हर वक्त आप फ्लोर पे तो नहीं मौजूद होते. बिग डिसीजंस नीड टू बी टेकन. यू नीड टू एम्पावर योर पीपल. यू नीड टू टीच देम टू थिंक लाइक यू इन वन सेंस, लेकिन येट थिंक इंडिपेंडेंटली. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या हर्डल्स फेस आई हैं और क्या आप एडवाइस दे सकते हैं टू आवर यंगर जनरेशन जो कि अभी स्किल्स गेन कर रहे हैं ऑन हाउ टू अडेप्ट टू कल्चर एंड व्हाट टू लुक आउट फॉर एज दे एंटर द वर्कफोर्स. So when I joined in 95, the organization, the culture was like a carpenter-driven culture. तो आप बढ़ाई का कल्चर जान सकते हैं क्या हो सकता है. So everything was based on a carpenter-based skill. जो कारपेंटर कर सकता है उसी तरह का वो प्रोडक्ट बनेगा. So eventually that culture was shifted to professional management.
उसमें बहुत challenges आए because जो साहब I was reporting to somebody, an employee, so उसको हमने जो वो 5 साल उन्होंने खराब किया, वो एक पेनफुल प्रोसेस था. मेरे अंदर एक चीज थी, मैं I'm very flexible in adopting things, and I give up a lot of things, which sometimes is a problem as well, क्योंकि आप देख भी रहे होते हैं नुकसान हो रहा है, showing flexibility which you shouldn't do in the longer run, I think. But I used to do that. Probably it's made me more stronger in that way. तो 2000 तक हम वो उस कल्चर के अंदर घुसते रहे, और वो जब एक कल्चर एम्बेड हो जाए ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बड़ा मुश्किल होता है उसको चेंज करना. इट टेक years and generations to fix it. आज तक शायद हम उसको उस लेवल पे फिक्स नहीं कर सके कुछ चीजें. So 2010 this all started and we brought in professional and we started investing, because उस वक्त मैं खुद प्रोडक्शन चलाता था. अब तो खैर मैं प्रोडक्शन नहीं चलाता. So उस वक्त मैं ट्रेन करता था ऑन जॉब, और मैं टैलेंट हंट करता था फ्लोर से. दैट वाज माय एचआर. जो हमारी अब फैंसी एचआर होगी ना, हम एचआर बनाते हैं अब अंदर कमरे में बैठ के. बट जब तक आप में यंग लोगों को ये है कि जब तक आप खुद काम को नहीं करेंगे हाथ से, आपको एचआर खुद नहीं आती, फाइनेंस खुद नहीं आती, सप्लाई चेन आपको खुद नहीं आती, आप काम इस मुल्क में बहुत मुश्किल हो जाता है. सो यू हैव टू डू इट बाय learning it yourself and then teaching people. So that's what I've done, I think. And now at this stage, at 2021, in the last 2-3 years, I realized यार ये तो हम stuck हो गए. हमने investments भी कर दी इतनी सारी, but return नहीं आ रहे. लोग वहीं stuck हो गए थे अपने mind. So we had to do a lot of जो ये organizational behavior की cultural changes थे. उसमें हमने सर उठा के जियो के program थे जिसके which were run on our core values and a lot of other things. तो उसमें out of comfort zone लोगों को बताया, फिर उनको बताया गया कि यार you can think and you can do it. पहले आपको dictate होता था, आप innovate करके आप चीजें create करें, floor से ideas create करें, और फिर उनको delegation ऐसा ऐसा की गई. So delegation एक बहुत बड़ा subject है. वो उसी वक्त की जा सकती है जब आपके बंदे के पास कॉम्पिटेंस होगी उसकी, वरना आप डेलीगेट नहीं कर सकते. वो आपको मेरे ख्याल में नुकसानदेह होती है. सो इट्स अ बिग बज़वर्ड इन आवर थिंग. बट हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्रीज लाइक अस, दे गेट चैलेंज्ड, और स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स. सो आपको वो ट्रेन करना पड़ता है, और क्या पता ट्रेन करके वो बंदा चला जाए. सो आई ट्रेन नियरली अबाउट thousands of people on the floor, and 300 to 400 are working in Dubai, Middle East. So I think that is my best contribution to Pakistan. And so culturally हमने बहुत काम किया, और ये अगर आपके लोग आपके साथ खड़े हो जाए ना, और आपकी समझ के साथ, तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं. मेरे मुताबिक टीम बिल्ड करने की बात है. बिल्कुल ठीक है जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. माशाल्लाह काफ़ी सवालात आए हैं हमारे ऑडियंस की तरफ से, तो कुछ हम सवालात लेते हैं उनसे. पहला सवाल है जी कि आपकी क्या एडवाइस होगी हमारी यंगर जनरेशन को, जो कि या तो अपनी एजुकेशनल जर्नी शुरू कर रहे हैं या ख़त्म करने वाले हैं, कि जॉब मार्केट के लिहाज से किस तरह के स्किल्स हैं जिन पे वो अपने आप को पॉलिश करें. फॉर एग्जांपल हम डेटा साइंस के बारे में बहुत सुनते हैं, डेटा एनालिटिक्स के बारे में बहुत सुनते हैं, जो कि अगेन वेरी टिपिकल जो बीबीए एमबीए में आजकल पढ़ाया जाता है. थोड़ा सा आप गाइड कीजिए कि एज एन एम्प्लॉयर, माशाल्लाह वेरी लार्ज एम्प्लॉयर, आप किस तरह के स्किल्स ढूंढते हैं जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को देख रहे होते हैं एट एनी लेवल. तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ही फ्रेज करूंगा कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है या आपने एम्प्लॉय बनना है. एक अगला सवाल एंटरप्रेन्योरशिप वाला भी है, सो आई थिंक दोनों पे हम फोकस करते हैं. आप दोनों के जवाब. आपने एम्प्लॉय बनना है तो उसका माइंडसेट बिल्कुल फर्क है, और आपने एम्प्लॉयर बनना है तो उसका माइंडसेट फर्क है. लेकिन जो सबसे ज्यादा आई थिंक द जनरेशन नीड्स टू फोकस ऑन द एनालिटिक साइड. डेटा को एनालाइज कैसे करना, उससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. So we present a data which is meaningless. The other day, the HR department presented me a data, and I said, "What am I supposed to do with this data?" पहले तो मैं उसका analysis खुद करके शुरू हो जाता. This time I said, "I'm not doing this. Please go and analyze this data." And when I said so,
they wanted 10-15 days more to analyze this. So data को analysis करना, this is an art and a science, I think. So other day, ये कल ही मेरे पास US से आया था. I'm very amazed with this data analytics and marketing on data, and you know, I think this is the future for any organization. कि जब analysis करके आप right decisions ले लेंगे तो वो आपको exponential growth देगा. So I think वो बहुत ज़्यादा deeper study चाहिए और लोगों को, और ये actually this is actually by doing it as well. And शौक की बहुत बात है, पैशन बहुत जरूरी है इसके अंदर, टू लर्न. कोई ऐसी चीज नहीं इंसान जो ना कर सके. मैं गया था फर्नीचर, कख पता नहीं था मुझे, अब मेरी एबिलिटी उस तरह से ये डेवलप हो गई कि अब मेरे लिए कोई भी चीज है ना मुझे करनी है, मुझे पता है, मैं उसको कह दूंगा उसने तो करनी नहीं. अब ये हमारी यंगर जनरेशन, तो मैं खुद ही फिर सीखता हूँ. अब ये डेटा एनालिटिक्स की मैंने किताब बड़ी जबरदस्त मंगवाई है, वो कल आई है, मैंने उसको डाउनलोड किया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया खुद ही. मैंने सबको भी कहा तुम पढ़ो. अब मैं क्या करूंगा कि एक हफ्ता खुद भी पढ़ूंगा, बाकियों को भी पढ़ाऊंगा, फिर उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, लर्न करूंगा. सो आई थिंक आंसरिंग योर क्वेश्चन, डेटा इज द क्रिटिकल. एंड बच्चों को जो ओरिजिनल आइडियाज है ना वो क्रिएट करने की आदत होनी चाहिए. हमारे बच्चों को ओरिजिनल आइडियाज नहीं क्रिएट करने आते. वो एक चीज सर्टन, जैसे एक सर्टन स्ट्रक्चर में बनी है, अब उसमें चलेंगे तो वो मल्टीनेशनल में तो शायद कामयाब हो जाए. लेकिन जो organizations like us which are trying to grow and make their systems and you know continuously improve, वो वहाँ वो challenge हो जाएंगे. So I think थोड़ा सा अपने जहन को इस्तेमाल करने की ability जो हमारी education में थोड़ा सा I think challenge भी है, और out of the box सोचना, data को analyze करना, I think it's an asset to any organization. Data analyst तो मतलब is the future for me, I think. Thank you. Next question, उमर है कि किसी ने कहा है कि जी माशाल्लाह आपने बहुत एंटरप्रेन्योरशिप सेमिनार्स पे भी प्रिजाइड किया है. तो अमीना है, पूछ रही है कि जी हम पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं फर्दर, और किस तरह इनेबल कर सकते हैं कि यंग लोग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ कुछ वाकई कर सकें. what can Pakistan do, and what can people like you do to help let's say जो entrepreneurs हैं वो अपनी dreams को realize कर सकें? So basic चीजें, I think for entrepreneur, it's first to do with your mindset and your attitude. I think it starts from there. So if you have a mindset of doing a 9-to-5 job, then of course you are a salaried person. And if you have the mindset of doing to work out of the comfort zone, नुकसान भी होगा तो कोई नहीं, सुबह उठ के फिर पॉजिटिव होना है, and then you know learn from that mistake. होता क्या है कि हम वो learn नहीं करते mistake, और वो सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हो रही है, वो सबके साथ होता है, I think. तो वो mindset है सिर्फ जो फर्क डालता है, I think, and your hard work and your ability to learn and the ability to, और जितनी आप continuous hard work करेंगे. मेरे में I was not a very out of the box thinker, but क्योंकि कर करके वो आप एक्सपीरियंस बेस्ड हो गया कि वो अब मैं कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाए तो आई ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन. सो वो होता है, नुकसान उसका ये है कि आप सारे सोल्यूशन दे देते हैं, अगले को सोचने पे मजबूर नहीं करते. नाउ आई गॉन द अदर वे, आई एम टेलिंग पीपल नाउ टू स्टार्ट थिंकिंग. सो एंटरप्रेन्योर के लिए जो बेसिक मेरे ख्याल में ना, एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं जो इसको प्रमोट नहीं करते. दे जस्ट मेक यू थिंक कि आपने एम्प्लॉय बनना. So ये I think for example my son is studying in the US. The difference I see in him is his analytics, his thinking, his ability to think out of the box. Education तो जो है सो है. So this is what we need to create in Pakistan, I think. So Very true. And a lot of reading as well. We don't read and update ourselves with the modern technologies and things. So बहुत important है कि जो आप करना चाहें उसमें आप फिर बेस्ट काम करें, उसकी नॉलेज और लर्न करें उसको, आर्ट को. वेरी ट्रू. इनफैक्ट ये जो अगला सवाल है मैं पढ़ रहा हूँ जो आया है वो इसी के बारे में, जो अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारी बाउंड्रीज जो हैं वो
वेरी ट्रेडिशनल, जिसको हम ऑर्थोडॉक्स कल्चरल बाउंड्रीज कह सकते हैं, वो मेंटल बैरियर्स हैं रादर देन एनीथिंग एल्स। हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हम शायद अपने ऊपर फॉइस्ट करते हैं, उसके लिए है। आपका क्या ख्याल है कि लेट्स से अगर हमारे लिए एडवाइस हो एज ए यूनिवर्सिटी, एज हमारे करिकुलम के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं उनको कि जी वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट राउट के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप राउट पे जाएं? क्या चीजें इनकलकेट कर सकते हैं और किस तरह उनको इनेबल कर सकते हैं इन योर ओपिनियन कि वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें? आई थिंक एक तो प्रैक्टिकल ऐड करें मोर इन द करिकुलम, मोर इंटर्नशिप्स, मोर प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क्स, बिकॉज जितना वो प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल फाइनेंस का प्रैक्टिकल करें, मेरे कोर्स में थोड़ा एडवांटेज था। फिर एटीट्यूड ऐसा बिल्ड करें उनका कि they will start believing in themselves. I think वेरी गुड। that's the difference. And then give them an assignments. वो बच्चों की तरह रट्टे ना लगवाएं उनको केस स्टडीज दें जो प्रैक्टिकल बेस्ड हों और वो सॉल्यूशंस निकालें। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए आई थिंक। एंड इट डजंट हैव टू बी कि सारा दिन आप रात पढ़ते रहें, वो भी कराएं, लेकिन आई थिंक इट्स मोर टू यूज योर माइंड एंड ब्रेन, एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज क्रिटिकल फॉर एवरीथिंग। वेरी ट्रू। एंड इनफैक्ट इट सीम्स कि काफी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन आया कि जी व्हाट डज एन एंटरप्रेन्योर रियली नीड टू नो व्हाइल ही और शी इज स्टार्टिंग अप देयर बिजनेस? अगर आप कोई टूल बॉक्स, कोई स्किल सेट आप कहते हैं यार आपने लर्न करके आना है, वो क्या आप 3-4 चीजें हैं जो आपका ख्याल है कि आप ला के पेश कर सकते हैं when they hit You the... can answer this question better than me, but I try to have a go at it. Basically, yeah, जब आप बिजनेस करते हैं ना, तो आप सप्लाई चेन मैनेजर भी खुद होते हैं, आप फाइनेंस मैनेजर भी खुद होते हैं जब स्टार्टअप होते हैं, क्योंकि आपके पास वो इतनी बड़ी फाइनेंसिंग अरेंज नहीं होती। फाइनेंस भी आपने अरेंज करनी है, आपने अपनी अगर प्रोडक्शन चला रहे हैं, प्रोडक्शन भी आनी चाहिए। आपका जो तकरीबन हर स्किल सेट आपको आना चाहिए टू लर्न, एंड बिफोर एम्बार्किंग ऑन दैट यू मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ दैट, सो आपको कोई चक्कर ना दे, और या आप उसको ट्रेन कर सकें। सो थोड़ी चक्करबाजी इस मुल्क में बहुत थोड़ी सी ज्यादा भी चल जाती है, और वो इसलिए भी चलती है कि वो अगले के पास नॉलेज नहीं होता, तो उसकी वो फिर वो आपको घुमा रहा होता है। सो आई फील कि एक तो एटीट्यूड है, और ये सारी चीजें हैं कि जो भी आपको ये मुख्तलिफ स्किल सेट है, ह्यूमन रिसोर्स, ये बेसिक चीजें आपको प्रैक्टिकल, नॉट थेरेटिकल, प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत फर्क है। सो वो चीजें आनी चाहिए, एंड मे बी यू कैन वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1 year एंड लर्न different skill sets and or areas, because unfortunately हमने ये कोई ऐसे areas बनाए भी नहीं जिसको entrepreneur promote करें। So startups शुरू हुए हैं I think, but I don't know how effective they are, but yes, that's my thinking. It's basically pure attitude, how आप कितने रेडी हैं अपने फेलियर से और उससे आगे उसको फाइट करने के लिए। फेलियर्स तो आएंगे स्टार्टअप्स में, तो इट्स यू बाउंड टू फेल। सो उसको कैसे आप चैलेंज को लेके एवरी डे यू गेट अप एंड फिक्स द सिचुएशन। स्ट्रेच द बाउंड्रीज, अपने ओन मेंटल बैरियर्स की भी, एज वेल एज जो हमने इससे पहले बात की कल्चरल बैरियर्स, जो हमारा कल्चर आई थिंक आपको प्रेजेंट करता है एक बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ। पॉसिबली हम इस चीज को अप्रोच करते हैं जब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रूट कोई ले रहा हो। अच्छा, लेट्स शिफ्ट गियर्स अ लिटिल बिट, वी जस्ट हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट। कुछ सवालात आए हैं रिलेटेड टू कोविड। तो पहला सवाल है कि जी हमारी इस लाइफ टाइम के अंदर प्रॉबली कोविड एक इस तरह की चीज़ है जो आई थिंक फॉर यू एंड आई एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके लिए पहला ये एक्सपीरियंस है ऑफ जिसको हम कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पेंडेमिक। तो इससे डिसरप्शंस हुई हैं हमारी हर किस्म की, आपकी ऑब्वियसली रिटेल साइड पे, आपकी सप्लाई चेन में। 2-3 लर्निंग्स आप अगर इससे टेक अवे करें कोविड की प्रेवलेंस से, और आप अपने बिजनेस को किस तरह देखेंगे नोइंग कि ये अब एक तरह की चीज हमारे हिस्ट्री, हमारी लाइफ टाइम में बेक इन हो गई है, व्हाट वुड योर एडवाइस बी एंड हाउ हैव यू चेंज्ड एज योरसेल्फ एंड एज अ बिजनेस इन लाइट ऑफ कोविड? कोविड मुझे जब हुआ था 1 साल पहले, so I thought I'm gone. Okay, wow. So I thought I'm gone.
So I just shift to a little Islamic way here. But I said, यार, if अल्लाह ताला ने बीमारी दी है तो फिर शफा भी उसी ने देनी है, तो मुझे स्ट्रेस करने की क्या जरूरत है? And those 15 days, I did a lot of self-reflection in myself. Because I was isolated in a room, had nothing to do. So I planned my day that way and I enjoyed. I used to watch dramas, I used to do work. जब work का दिल चाहता था कर लेता था, नहीं कर चाहता था नहीं करता था. And it, the whole perspective changed. And जब कोविड टाइम में पहली दफा सारी रिटेल भी बंद हो गई 2-2.5 महीने, and alhamdulillah we paid our salaries and wages to our workers, किसी को फारिग नहीं किया. And उससे लर्निंग ये हुई कि in tough times you learn. अगर आप और आपको एफिशिएंट होना है, it's the survival of the fittest. So अगर आप उस वक्त सोचते नहीं और परेशान हो जाते हैं और बॉक डाउन हो जाते हैं और उसको सॉल्यूशंस नहीं निकालते to move ahead, then you are down and out. So I think COVID has taught us a lot of lessons. हमारी retail बहुत अभी 2 दिन बंद रहती है और which is painfully bad. Because हमारी जो फर्नीचर इंडस्ट्री में रिटेल ऐसा वो कोई कपड़ों वाली रिटेल तो है, so it consume a lot of time. लोगों को आके देखना होता है, उसका साइकिल 25 से 30 दिन होता है. कपड़ों में तो आप इंस्टेंट बाइंग करते हैं, फर्नीचर जाएंगे आप, इधर शॉप अराउंड करेंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर आएंगे, अच्छा जी फिर आप देखते हैं. So अभी तक तो ऐसे ही है. तो इसमें हमें बहुत सारे नजर आए. अब हमने जब अपने आप को स्ट्रेच किया, हमारी टीम ने भी, तो एफिशिएंट हुए और उससे फिर उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के थोड़ी और चीज़ों को 5 दिन के अंदर क्लोज करने की कोशिश की या 4 दिन के अंदर. सो अब वो इस तरह इसको हम मैनेज कर रहे हैं अभी तक और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नॉट टू बैड नाउ बिकॉज मार्केट हैज आल्सो रिवाइव कर रही है. तो वो सिर्फ चैलेंज जो है वो सप्लाई चेन का इस वक्त बहुत बड़ा, जो कि दुनिया में डिस्ट्रप्शन है इस वक्त बहुत बड़ी बिकॉज ऑफ द चाइनीज कंट्रोल 9 ऑफ द पोर्ट्स आई थिंक, और वो सारी वहाँ कंजेशन हो गई है. अभी हमने यूएस कंटेनर भेजा है. It was a nightmare to get the container and cost was horrendous. $14,000 for one container. So these are all challenges you have to face. And yeah, $2,000-3,000 का मिलता था $14,000. So these kind of things you have to keep on adjusting in your business. It is tough, but if you strategize, you think, you rethink, you fail, you re-strategize, eventually you can come out of it. That's what I've learned. इंटरेस्टिंग, थैंक यू. और वाकई आप सही कह रहे हैं कि दुनिया हमेशा के लिए चेंज हो गई है. एंड आई थिंक जो अडेप्ट कर चुके हैं, जो फ्लेक्सिबल थे, आप तो माशाल्लाह इससे गुजर भी चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस हेल्दी एंड हैप्पी. अल्लाह आपको शिफा दे मजीद. बट यस, आई थिंक ये एक इस तरह की वबा है, शिफा अल्लाह ताला के हाथ में. एंड आई रियली डू होप कि इंशाल्लाह वी गेट ओवर दिस सून. Next question is, there is a cost to being a good corporate citizen. What are your comments on competing against unorganized sector players who do not play by the same rules? I guess referring to जो आपने कुछ बात भी की कि आप अनस्ट्रक्चर्ड लोगों के साथ इंडस्ट्री में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं. माशाल्लाह I can vouch कि Interwood has been a very good corporate citizen. फातिमा मेमोरियल एज अ हॉस्पिटल को भी आपने बहुत सपोर्ट किया, पर्सनली भी, एज अ कंपनी भी. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आई थिंक पाकिस्तान में कि अगर आप के कंपेटिटर्स आर नॉट प्लेइंग बाय द सेम रूल्स. वाकई ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है. एनी थॉट्स दैट यू कैन शेयर इस बारे में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं सोच रहा हूँ इसको आंसर कैसे करूँ. एंड अनफॉर्चुनेटली वी एज अ नेशन हैव गॉन टू डॉग्स इन टर्म्स ऑफ आवर सेल्फ रिस्पेक्ट. हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रिलीजन की, ज़कात के नाम पे हम, लेकिन टैक्स नहीं देते. अब मुझे ये समझ नहीं आती कि टैक्स क्यों नहीं देते. तो अगर टैक्स नहीं देंगे तो 10,000 15,000 लोगों ने चलाना है इस मुल्क को, या 20,000.
इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हम टैक्सेस देते हैं. अब फर्क ये है, अब उसमें हमारी कॉन्शियस क्लियर है, एट द एंड यू स्लीप वेल. अगर आपने चोरी करके काम करना है तो देन यू आर ऑलवेज, यू विल नेवर ग्रो एज वेल एज एन ऑर्गेनाइज पीपल. हर एक की अपनी है सोच, बट आई थिंक जो ग्रोथ आपकी काम सही करके आती है और चीज, क्योंकि हम हैं ही क्वालिटी और हर चीज बेस्ड है हमारी कमिटमेंट्स और अपनी बहुत सारी इस तरह की चीजों पे, तो इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम वो फेस करते हैं. ऑफ कोर्स हम 5 टाइम मोर होते या 10 टाइम मोर हो सकते थे अगर हम ये सारी चीजें ना कर रहे होते, बट दैट्स द कॉस्ट वी हैड टू पे फॉर बीइंग corporate responsible citizens. And Allah ka shukar hai, you know, still we are the leaders in the market. We compete with carpenters all the time. We compete with unfair competition. I won't go into details for that. But उसमें हमारे consultants भी आ जाते हैं. वो देखो इंडस्ट्री किस तरह ग्रो होती है, कंसल्टेंट आपको सपोर्ट करता है, देन यू ग्रो. हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, हमारा कंसल्टेंट ही हमारे अगेंस्ट चल रहा होता है और वहां फिर कारपेंटर होता है जो आपके अगेंस्ट चल रहा होता है. होल मार्केट इज फाइटिंग अगेंस्ट यू एंड आपको वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रही होती है. बट एट द एंड इफ यू आर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी, यू आर सेटिस्फाइड. एक चीज है जो मुझे अच्छी नहीं लगती अपने लोगों से, कि जो कस्टमर को कभी कभार लेट डाउन कर देते हैं इन सर्विसेज, व्हिच आई फील वेरी बैड अबाउट. And I take severe action on that. That's the only thing I am very, very upset about with my people. Or I'm committed to fix that issue. So yes, we are getting there. Despite all the disruption, हम होंडा सिविक की तरह 3-3, 4-4, 5-5 महीने की डिलीवरी टाइम नहीं लेते. We have instant deliveries. We have stock in hand. कुछ जगहों पे हमसे डिले भी हो जाते हैं because of the supply chain issues. But 90%, 95% we are honoring our commitments. So, great. Yeah. Fantastic. अच्छा जी, we are at time actually. लेकिन I was just scrolling down the list of questions. एक सवाल आखिरी अगर आप मुनासिब समझें तो मैं पोज कर देता हूँ on behalf of the participant. नाम नहीं इन्होंने दिया. पूछा है कि जी, what has been the role of the e-commerce sector in furniture industry? Is it the same as other routine retail brands, and how has Interwood benefited? अभी तो कोई बेनिफिट खास नहीं है, बट ये जो कोविड सिचुएशन है, ई कॉमर्स हमें बड़ा लर्न कराया. सो इससे हम आई वाज वेरी अपबीट अबाउट दिस ई कॉमर्स थिंग 3 साल, और इट इज ऑल अबाउट डिजिटल एनालिटिक्स, यू नो, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग. इट्स एन आर्ट एंड अ साइंस. सो ये अगर आप लर्न कर लें तो स्काई इज द लिमिट फॉर ई कॉमर्स नाउ. आई थिंक 20% वर्ल्ड वाइड मार्केट में 20% शेयर, 15 to 20% e-commerce का हो गया, और 80% आई थिंक रिटेल का है. एंड अगर आप इसको पोटेंशियली, आई थिंक इट इज गोइंग टू चेंज वेरी क्विकली. एंड अगर आप उस तरह के प्रोडक्ट लाइन लाएं फॉर आई थिंक कंज्यूमर टाइप प्रोडक्ट, तो इसमें तो यू नो 200 मिलियन की पॉपुलेशन है. इट्स मल्टी बिलियन, पता नहीं कितने का बिजनेस है. सो अगर इसको हम समझ जाएं और सही टारगेट कर पाए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, व्हिच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली, एंड अंडरस्टैंडिंग उसको सही समझना और सही करना, यही आर्ट है और यही करना. और वो हमारे पास मजे की बात है, प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन टू मार्केट इट टू द राइट पीपल is an art which we are learning. But to answer your question, it's huge potential in Pakistan for e-commerce. बिल्कुल. आई थिंक मेरे नजरिए में आपका बल्कि प्रोडक्ट इंटरवुड का, क्योंकि रिलायबिलिटी उसमें बिल्ट इन है, कंसिस्टेंसी है. अक्सर औकात लोग इसलिए भी कोतराते हैं ई कॉमर्स पे ऑर्डर करने से कि उनको डर होता है कि जी दे मे नॉट, व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट यू गेट. आपके केस में माशाल्लाह मैं खुद वाउच कर सकता हूँ कि आई थिंक इंटरवुड की जो कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, रिपीटेबिलिटी होती है प्रोडक्ट में, बिकॉज अगेन आप ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं और एक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, उसकी वजह से
मोस्ट लाइकली आपके पास जो लेट से फर्नीचर लेने आएंगे, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे घर का हो, दे कैन बैंक ऑन कि जो वो ले रहे हैं उसी क्वालिटी की चीज उनको मिलेगी, एंड दैट आफ्टर सेल सपोर्ट भी अवेलेबल होगी. इट्स नॉट कि आप कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेशन है. माशाल्लाह, अब आपने इतना ब्रांड में इन्वेस्ट करना, आई थिंक हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बहुत एक बड़ी चीज है कि इतना पुराना ब्रांड और इतना बड़ा ब्रांड बनाना आसान काम नहीं है, और उसको मेंटेन करना लिटरली एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट आप अपनी रेपुटेशन लूज कर सकते हैं विद वन बैड कॉन्ट्रैक्ट, वन बैड सप्लाई. Like you named some other companies जो कि unfortunately अभी इस वजह से they are suffering on account of delays and everything. तो बहरहाल, Omar, with that, I would like to take the opportunity to thank you very much. आपने हमारे साथ अपना कीमती वक्त निकाल के बात की हमसे, हमारे स्टूडेंट्स से, एंड अभी हमारी टीम की तरफ से मैसेज आया है कि वेरी काइंडली इंटरवुड के भी फेसबुक सेशन पे हमारा इंटरव्यू लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है. वी होप दैट जो सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, दे बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वेरी candid conversation with yourself, and we really would like to thank your candor in this whole thing, in this whole session. हम चाहेंगे कि जो हमारे students हैं, interested हैं in the programs जो कि नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, आप हमारी वेबसाइट पे आइए www.niu.edu.pk. come learn more about us. इंशाल्लाह हम उमर साहब से रिक्वेस्ट भी करेंगे, सारा हमारे इंसिडेंटली एनआईयू का फर्नीचर भी इंटरवुड ने मोस्टली सप्लाई किया हुआ है, तो हम इनवाइट करेंगे उमर साहब को कि आइए हमारी यूनिवर्सिटी में, कम टॉक टू द स्टूडेंट एज अ गेस्ट लेक्चरर. ही हैज वेरी काइंडली एक्सेप्टेड दिस रिक्वेस्ट ऑफ आवर्स, एंड वी होप कि इंशाल्लाह वेरी सून इन द फ्यूचर, थोड़ी सी कोविड की सिचुएशन बेहतर हो तो हम फेस टू फेस पैनल डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे. एंड वी होप कि आप हमें इजाजत देंगे कि इंटरवुड की प्रोडक्शन फैसिलिटी भी हम विजिट करें, सो वी कैन लर्न मोर from you as a leader and from the company, mashallah, that you have created. So there is a corporate documentary. I would request everybody, जो YouTube पे, I'll ask somebody to share the link, and अगर आप जो भी audience से कर लें, they will get a fair idea of the automation, the technology, and what we are trying to achieve. It's an 8-9 minutes documentary. Fantastic. And वो टेक्नोलॉजी रिव्यू वाला भी प्लीज आप लिंक भेजिए. आई थिंक वो मैंने जब पहली दफा देखी थी, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद एमआईटीज टेक्नोलॉजी रिव्यू, जो आपने ये आई थिंक पेंटिंग एंड फिनिशिंग मशीन थी, गालबन रोबोट था. जी, वो रोबोट पे थी, रोबोटिक पेंटिंग थी, जो फर्स्ट रोबोट था. एंड वी हैव अ रोबोट इन वेल्डिंग, बिकॉज़ वी हैव आवर ओन मेटल फैसिलिटी एज वेल, बिकॉज़ मॉडर्न फर्नीचर में अब सारी मेटलर्जी और प्लास्टिक्स आर दी थिंग. तो हमने अब इन पे भी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी हैं. सो यू नो, यू हैव टू मूव विद टाइम. इफ यू डोंट, यू आर डन. बिल्कुल जी, आई कंप्लीटली एग्री. उमर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम. We really appreciate it, and thank you very much to the audience for bearing with us. We hope कि सबके लिए ये एक fruitful और engaging session था, और इंशाल्लाह हम मज़ीद अपने fireside chats continue करेंगे as the season goes on. Umar, thank you very much. We hope to stay in touch. Thank you. Allah Hafiz.